Good morning, students. Now I will teach you next lesson, Who I Am, part 1. So this is the story of a small kids. Their ambition is different and they are expert in different manners. So we explain one by one expertise of the students, of the small kids. तो सबका पसंद, सबका एडवेंचर, सबका वॉइस अलग अलग होता है. ठीक है, आपको जो पसंद है दूसरे बच्चे को शायद पसंद नहीं होगा. So related to this concept, this lesson is start. In this lesson we look at what we are like and how each of us in different, we are all interesting people in different way and we are all good at different things. As we read this, think about what you are like and what you enjoy doing. Listen, सबको अलग अलग चीज़ करने में पसंद आता है. Some likes drawing, some like dance, some like mountaineering, some likes playing games. So different people have different hobby, and if you enjoy the hobby, that is your satisfaction. You get the satisfaction which in event, that is your hobby. Suppose one students like to draw pictures, so he or she is satisfied with this activity, so this is his or her hobby. So this is related to this chapter. Now I explain one by one. Okay, this is one girl. Okay, look at here, her name is Radha. My favorite activity is climbing trees just outside our house. There is a mango tree which I love to go up. Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree. Listen, this girl Radha is her hobby is climbing the trees. This is very special hobby. Okay, actually what happens outside her house, there is a mango tree. और वो मैंगो ट्री का जो ब्रांचेस यानी उसकी जो डाल है इधर उधर स्प्रेड होगा. सो दिस इज वेरी सिंपल टू क्लाइम अप द ट्री. Who love to climb the tree, they know that if branches are here and there, it is easy to going up and up. Okay, so it is very simple to climb up the tree, and I can sit comfortably in the fork of two branches. My mother tell me it is not sensible for girls to climb tree, but one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. What happened? One day, फॉक ऑफ द ट्री मीन्स दो ब्रांच के बीच में. अपने फॉक देखा है ना घर में, जिसमें हम नाश्ता करते कुछ करते, कैसे होता है, ऐसे ऐसे वी शेप थ्री वाला होता है ना, तो बीच में वी शेप जैसा होता है. तो वो ट्री का ऐसा ही एक शेप वाला ब्रांचेस में राधा बैठी थी. तो उसकी मम्मी ने कहा, अरे ये कोई कारण हुआ, कोई लड़की ऐसे क्लाइंब करती है ट्री में. बट वन आफ्टरनून, लेकिन क्या हुआ पता है, एक मज़ेदार बात. एक दिन दोपहर में उसकी मम्मी को भी बहुत इच्छा हुआ ट्री में चढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए. तो उसकी मम्मी भी क्लाइंब करने लगी. उसके बाद क्या हुआ, वो लोग क्लाइंब करके, राधा ने उसकी मम्मी, दे आर टॉकिंग ईच अदर, दे आर शेयरिंग ईच अदर. और सबसे मज़ेदार बात हुई कि खट्टा खट्टा आम को उन्होंने ऊपर में नमक लेके एंजॉय करके खा रहे थे. जब राधा पूरी ट्रीज़ की पूरी ऊपर जाती है, तब उसको ऐसा महसूस होता है कि वो दुनिया की सबसे ऊपर में क्लाइंब की है. ठीक है. देन नेक्स्ट थिंग इज नसीर. ओके, नसीर इज स्मॉल बॉय लाइक यू. व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर. देखो, किसी को स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी होता है, किसी को कॉइन कलेक्शन की हॉबी होता है, किसी को क्रिकेटर्स की फ़ोटो कलेक्ट करने की हॉबी होती है, किसी को कार की फ़ोटो कलेक्शन करने की हॉबी होती है. तो नसीर जो है ना, उसको सीड मतलब दाने, गेहूँ की दाने, चावल की दाने, ये सब उसको कलेक्ट करने की बहुत शौक था. Okay, we have cotton seeds in our village and everywhere. My father spends a lot of money on buying new seeds to grow our
टू आवर कॉटन प्लांट्स। तो क्या हुआ, उनकी जो खेती था वो हमें कॉटन सीड्स, आपको पता है कॉटन सीड जब फट जाती है उसमें ब्लैक ब्लैक सीड्स निकलता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता था कि वो कॉटन सीड्स कलेक्ट करें। उसके पापा की तो खेती थी, तो उसके पापा क्या करते थे, बहुत सारा खर्चा करते थे नया सीड्स खरीदने के लिए और उनके कॉटन प्लांट लगाने के। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट many years ago he could collect the seeds from his own plant which would be soon to grow new plants during the next year। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसके पापा काफ़ी खर्चे करते थे हाँ सीड्स खरीदने के लिए। एक दिन उसके ग्रैंडफादर बोले, जब मैं तुम्हारी उम्र के थे तो मैं क्या करता था कि अपने खेती में जाके सीड्स कलेक्ट करता था और मैं नेक्स्ट कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर उसको लगाता था और प्लांट भी होता था। तो बट टुडे दैट डज नॉट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन अभी क्या है, पहले जो सीड्स में हो जाता था प्लांट, अभी ऐसा नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, हर साल सीड्स खरीदते हैं और उसको अपने जो खेती है वी विल हम लगाते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई इट्स सो। फिर मैंने सोचा वाई वी डूइंग सच थिंग्स एवरी ईयर, वी स्पेंड सो मनी मनी फॉर द प्लांटेशंस। आई वॉन्ट टू लर्न how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. So I have some idea. I thought that yes, I just learn how to preserve the seeds. If I learn to preserve the seeds, now I seeds preserve it, and every year we can use same seeds in our field. So what, then we can not spend money every year. So this is different hobby. Okay, now come to the Rohit hobby is different from Nasir and Radha. If I had a huge amount of money, I would travel and travel. I want to see the mountain of New Zealand because they look beautiful in a magazine picture. I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. Okay, his hobby is totally different. You love to travel. उसने सोचा अगर मेरे पास बहुत मनी होगा, then I will travel everywhere. I want to go the New Zealand and watch the beautiful scenery from that place. एंड उसको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था, वो मैगजीन से अपने बहुत खूबसूरत पिक्चर देखता था और उसको इच्छा हो रहा था। एंड समटाइम्स ही थॉट दैट आई कैन सेल ऑन अमेजन रिवर which is in South America on a raft. I want to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to see the coral. Listen, coral means समुद्र के नीचे एक वाइट की जैसा सब समुद्रिक जीव जब मर जाते, वो जमा होते होते सालों भर प्लांट की जैसा समुद्र के नीचे होता है और हर समुद्र में वो देखने को नहीं मिलता। कोई समुद्र के नीचे हम कोरल्स देख सकते हैं। तो ये सोचता है इफ़ आई डाइव, लक्षद्वीप में वो देखने को मिलता है। अगर मैं डाइव करके समुद्र के नीचे जाऊँ, आई कैन सी द कोरल। I suppose I should go to the Konark temple in Orissa or the old city in Beijing in China and the pyramid in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than old building. Actually what happens, he thought that if I travel Konark temple, I can enjoy the temple. I can Beijing, if I go to the Beijing in China, I can see the building, I can see the pyramid in the Egypt too. But what happened actually what happened, Rohit more interested to see the sightseeing in nature. He loved the nature rather than old building. Okay, so you know that different people have different hobby, different people have different interest also. Now next come to the Sarabjit. He is a small boy like you. He is
a hobby is totally different from you. What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. For example, if I tell my teachers that I could not do my homework because Ravi borrowed my book and forget to return it, or I tell my parents that it was not me but my little brother who started the fight. Yes, this thinking is tally little bit similarity with your thought. Yes, when you are not did your not do your homeworks, that time teacher also told you why not you did the homework. That time what you give the answer? Madam, मेरे कोई notebook मेरी friend ले गए. If teacher thought that it's okay, how can the students do did his homework? इट्स ओके. अदरवाइज क्या होता है, टीचर डांट देते हैं. तो वो इस तरह से हरकतें सरबजीत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. और जैसे आम घर पे होता है, भाई बहन में झगड़ा लग जाता है. हाँ, और छोटे भाई के झगड़े के कारण, बदतमीजी के कारण आपको डांट सुननी पड़ती है. उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था. और इफ़ आई टेल माई टीचर्स दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स. टीचर पूछते हैं ना, भाई आपने पढ़ा क्यों नहीं, इतना कम मार्क क्यों रहा. तब मैं कह देता हूँ कि टीचर मैंने पढ़ा तो था पर पता नहीं क्यों मुझे कम मार्क मिला. फिर टीचर क्या आंसर देते, झूठ कहते हो, पढ़ते नहीं हो, और तरह तरह की एक्सक्यूजेस देते. ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते. तो ये सब चीज़ सरबजीत को बिल्कुल पसंद नहीं है. दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाई. पर टीचर की लुक और बच्चे की लुक कैसे होता है, जैसे मैं कोई झूठी बातें सुना रहा हूँ. तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर मी. जब मैं देखती हूँ उनके मुंह मेरे ऊपर है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री. जब मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता, तब क्या करती हूँ, कुछ नहीं करती. सिर्फ मैं मुंह को नीचे करके मेरा शूज़ को देखता रहता हूँ और गुस्सा को काबू में करता हूँ. सो दिस इज़ द डिफरेंट थिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज़ नॉट ए हॉबी एक्चुअली. दैट पर्सन डज नॉट लाइक टू लाई. उसको झूठ बोलना और किसी का झूठ को मतलब उसकी सच बात को एक्सेप्ट नहीं करने का उसको बिल्कुल पसंद नहीं है. नाउ नेक्स्ट गर्ल इज डोलमा. व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. डोलमा की भी दूसरे सपने हैं. डोलमा सोचती है जैसे मैं बड़ा हो जाऊंगी ना, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी इंडिया की. तो प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ तो उसने सोचा होगा जिसके लिए उसके दिमाग में आया कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं. चलो देखते हैं क्या सोचती है वो. पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teachers always trust me when something needs to be done in school. What happens, जैसे मैं सबको कहती रहती हूँ ना मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, तो सब हंसी मजाक मेरे उड़ाते हैं. तो बट मैं श्योर हूँ जो मैं सोचती हूँ वो मैं करके दिखाऊँ. मेरे क्लास में सब मेरे पे देखते हैं और सोचते मैं कैसी बातें करती हूँ. हाँ, जब उन लोग कोई प्रॉब्लम में पढ़ते हैं, टीचर कोई प्रॉब्लम में पढ़ते हैं, तब वो लोग मेरे पे ही ट्रस्ट करते. क्यों? क्योंकि मैं सब प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर देती हूँ. ओके, सो मैं स्कूल में सब काम सॉल्व कर देती हूँ. आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन. आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल. तो ये जब प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो ये क्या करेगी, बोलते मैं सोचती हूँ कि मेरी इच्छा है मैं शहर में बहुत अच्छा हॉस्पिटल, रोड, स्कूल बनाऊंगी. आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया विल इन्वेंटेड क्योर्स फॉर डिजीज एंड सेंड ए स्पेस शिप टू मार्स.
इसने सोच रही थी अगर मैं अच्छा प्राइम मिनिस्टर बनूंगी तो क्या होगा, मैं सब साइंटिस्ट को इंस्पायर करूंगी, वो लोग नए नए चीज़ इन्वेंट करेंगे, जो डिजीज़ का अभी तक बीमारी का दवा नहीं निकला है, हाँ वैक्सीन नहीं निकला है, वो लोग करेंगे और मैं मार्स में जाने के लिए सोचूंगी। हालांकि अभी तो सब मार्स में जा चुके हैं, लेकिन ये बुक थोड़ा पुराना है, इसीलिए तब कोई मार्स में नहीं गए थे। तो स्पेसमैनशिप के लिए भी सोचती है, यानी ये ओवरऑल डेवलप करने के लिए सोचती है। सोशल वर्क के साथ साथ साइंटिफिक वे में भी वो अपने देश को डेवलप करने के लिए सोचती है। नेक्स्ट बॉय इज पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड Sunday of every month. On this day, our whole family always goes to the cinema hall to see a film. Okay, मेरा फेवरेट डे, पीटर का फेवरेट डे इज सेकेंड संडे. वाई? बिकॉज सेकेंड संडे एवरी मंथ में आता है और मेरी पूरी फैमिली उस दिन हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं. माई फादर गेट्स टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, my grandmother, my parents, my two brother and I take the bus there. In the interval, my father हाँ क्या करते हैं, इंटरवल में जाते और मेरे फादर क्या करते हैं, मेरे फादर क्या करते हैं कि टिकट्स लेते हैं. फादर टिकट लेते हैं और हमारे लिए इंटरवल में क्या करते हैं, वहाँ पीनट्स खरीदते हैं. एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म. मैं अंधेरा में बैठता हूँ और मूवी देखता हूँ और खाता रहता हूँ. क्या खाता रहता हूँ? पीनट्स खाता रहता हूँ. आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम. फिर जब मूवी ख़त्म हो जाता है हम लोग सब लोग आते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और everyone is a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family. ओके, तो हम लोग मूवी देखने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं और ऐसा महसूस होता है अरे फैमिली का सभी पीपल्स उस दिन एंजॉय किए, मूवी देखे, पीनट्स खाए, आइसक्रीम खाए और एक साथ भी इकट्ठा 2-3 घंटे हमने स्पेंड किए. इसका मतलब हम लोग हैप्पी फैमिली है, सबको एक साथ लेके रहना पसंद करते. तो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक? This is very common story for each and every students, because each and every students are different hobby, different thinking, different expectations. So this is not tally from one, this is different from one person to another person. I hope you have some expectations, some hobby, and I hope your expectations and hobby should be utilized in a proper manner which give us happiness to all the world, all the family member, all the students in our country. Okay, take care, goodbye, thank you.